You are watching BUTV Karachi. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. I am Dr. Misbah from Bahria University. Welcome to this career counseling session of Bahria University. As you know, Bahria University is offering multiple programs in multiple domains, whether it's of the health, whether it's of engineering, whether it's of computer sciences, business domain. Bahria University is offering multiple programs in all across Pakistan. Bahria University has multiple campuses, as you know, in Islamabad, Lahore, and Karachi is the main location. As Institute of Professional Psychology, Bahria University Medical and Dental College, Pakistan Maritime Relevant Institute is also in Bahria University. So in this webinar, we are talking about one of the health domain, that is the public health. Preferably in the public health, we are dealing with the health, basically about the patients, about the community, about the population, how we can make our health better. So for in this regard, I have the faculty of public health with me. I have Dr. Anam with me. Dr. Namra Hamad, she is also working in public health department, teaching multiple courses in the domain of public health. Thank you so much for this session, coming in this session, and welcome to the show. So हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, कैरियर काउंसलिंग है, आगाही का सेशन है. तो सबसे पहला सवाल तो जानने वालों को ये होगा कि पब्लिक हेल्थ है क्या. जैसे कि सेहत तो बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए, बट पब्लिक हेल्थ है क्या. सो व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ? Actually, it's a lengthy question, but I'll try to be as composed as I can. Public health is basically dealing with both the patients or the public as well as the healthcare department staff. Like we are not working as a consultant or a physician. Being doctor, we are not working as a consultant or physician. Instead, we are working as facilitators to the public, the receiving side, as well as from the provider, and we are working as the facilitator. Whatever issues they have, the public has in the availability and accessibility of the health management, healthcare, we deal with all of them. We take their feedback and we try to make the system better. We deal with the policy, management, quality, effectiveness, availability, accessibility of the healthcare. Okay. And on that thing, we take both the public side, the healthcare side, as well as the rest of the stakeholders, whoever is involved in the delivery. We take all of them on board, and then we evaluate how can we make it an effective system and where are the gaps. So we try our level best to actually fill those gaps. So that is what I have tried to actually make this concept clear, because people have this issue that what is public health actually. So especially people who don't want to be in the direct healthcare system, being a doctor, they can join this field, because this is basically somewhere in between. If you want to serve the community in the best way possible regarding health, so you can join this field. That's perfect fit for you. Okay, perfect. As you have mentioned that health, जो सेहत है वो बुनियादी ज़रूरत है हर एक की, और health is usually accessible to each and every individual of the state, whether it's belong to any country. वो हर इंसान का एक बुनियादी हक है. So जैसा कि public health में हम जानते हैं, हम prevention की बात कर रहे होते हैं. We famous proverb prevention is better than cure, कि एहतियात जो है वो करना बहुत ज़रूरी होती है. तो जैसा कि आपने मेंशन किया, डॉक्टर्स वगैरह वो ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, डायग्नोसिस की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ, लेकिन पहले ही पॉपुलेशन को एजुकेट कर दिया जाए ताकि वो पहले से ही एहतियाती तदाबीर की बुनियाद पर उस बीमारी का शिकार ही ना हो. तमाम जो कम्युनिटी की काउंसलिंग है वो पहले से ही कर दी जाए, तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव. तो हम अगर पब्लिक हेल्थ अपने प्रोग्राम की बात करें, बहरिया यूनिवर्सिटी में जैसे BS 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम रन हो रहा है, उसमें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जो हम बच्चों को इक्विप करते हैं, सो दैट दे कैन बेटर गाइड to or serve the community in a very better way. Thank you, Misbah, for the question. I am Dr. Anam. I am teaching as a senior lecturer in Bahria University Public Health Department. Public health, बहुत से students असल में जब metric इंटर के बाद आते हैं तो they are a bit confused कि कौन सा कैरियर पाथ उनको चूज़ करना है. अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेडिकल की फील्ड में चले जाओ, MBBS कर लो, BDS कर लो.
रादर देन लाइक हर बच्चे को तो देखें नहीं होता है MBBS BDS में एडमिशन, तो वो बच्चे जिनको मेडिकल का इंटरेस्ट है लेकिन सम हाउ रीजंस की वजह से वो नहीं उनका एडमिशन होता मेडिकल में, तो दे कैन परस्यू द पब्लिक हेल्थ फील्ड। जैसे आपने कहा कि पब्लिक हेल्थ में हम क्या क्या कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ में देखें हमारे यहाँ डॉक्टर्स तो ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं वो जो है प्रिवेंशन और प्रोमोटिंग हेल्थ पे ज़्यादा उनका फोकस होता है। अब क्योंकि ज़ाहिर है हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम हर किसी को इलाज के लिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इलाज इतना महंगा है और एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। तो हम एज अ पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारी कम्युनिटी को एक साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और बहरिया यूनिवर्सिटी का ये 4 इयर्स का प्रोग्राम है जो कि जो बच्चे इंटर के बाद जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यही है कि आपकी एटलीस्ट 60% हो इंटर में, and then you have to qualify for the aptitude test. After that you have to go through towards the interview के बाद जो है if you are selected then you can welcome to the Bahria University Public Health Program। इसमें हमारे पास जो है वो बहुत सारे कोर्सेज हम इनमें इनरोल्ड हुए होते हैं बच्चे। हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 6 to 7 कोर्सेज होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ एंड रिलेटेड टू कुछ प्राइमरी कोर्सेज होते हैं, कुछ कोर कोर्सेज होते हैं, कुछ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। और ये आखिर के जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें हमारा रिसर्च होता है जो कि और यूनिवर्सिटीज़ में एज सच अभी नहीं हो रहा है बैचलर्स लेवल पे, लेकिन बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बैचलर्स में ही एक रिसर्च प्रोग्राम में वो एंट्री हो जाती है उनकी, सो दे वुड बी मोर टुवर्ड्स लाइक इन रिसर्च। कि कोई भी बच्चा अगर इंटर के बाद वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आना चाहता है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स बाय चॉइस है, उनकी पैशन था, चॉइस थी कि वो कम्युनिटी को सर्व करे, हेल्थ को सर्व करे, अपनी एजुकेट करे कम्युनिटी को। तो वो हम जब इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं कैंडिडेट्स से, तो हम क्या क्या स्किल्स चेक कर रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक CBT टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू का भी सेशन होता है, तो क्या किन बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को इनरोल कर रहे होते हैं ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो आगे पब्लिक हेल्थ में आना चाह रहे हैं अपकमिंग सेशन में वो जान सके, उनको आगाही मिल सके कि हमें किस किस चीज़ में बेहतर होना है टू ज्वाइन द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये बहुत सिंपल होता है। इसमें देखें ज़्यादातर बच्चे तो इंटर में जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादा तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मैट्रिक और इंटर के बाद बच्चे भी हार्डली जो है वो 20 ईयर्स के होते हैं, 18 ईयर्स के होते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि हमारा एक CBT टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, उसमें BCQs होते हैं, यू हैव टू फिल दोज BCQs एंड देन यू इफ द पर्सन स्टूडेंट इज़ क्वालिफाई देन वो अपेयर होता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू पे हमारे यहाँ एक पैनल बैठते हैं और 2-3 टीचर्स बैठते हैं। वो बच्चों की इंटरेस्ट को सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि जितना बच्चा इंटरेस्टेड है एजुकेशन में, उसकी क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसके मार्क्स कितने उसने अपने गेन करे हैं इंटरमीडिएट में। और फिर ये है कि क्योंकि ये एक फुल टाइम प्रोग्राम है, तो इसमें हम फोकस भी यही होता है कि बच्चे को फुल टाइम यूनिवर्सिटी आना है और क्लासेस अटेंड करनी है। यूनिवर्सिटी के थोड़े से रूल्स हैं इस मामले में कि अटेंडेंस शुड बी 75% अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है। और फिर ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड भी कराते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम हर सेमेस्टर में कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अवेयरनेस सेशंस होते हैं, वो बहुत मैंडेटरी होते हैं स्टूडेंट्स को लेना। इसके अलावा जो है NGOs में हम जो है उनको लेके जाते हैं, वहाँ पर उनका एक्सपोजर कराते हैं। और इससे 2 तरह के फ़ायदे होते हैं, एक तो बच्चे की लर्निंग हो जाती है, प्रैक्टिकली उसकी लर्निंग हो जाती है, एंड सेकेंडली उसको इन फ्यूचर जो है एक्सपोजर मिल सकता है कि वो जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं। ओके, सो कम्प्लीटली इक्विप्ड हम ना कि सिर्फ एजुकेशन करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हम विजिट्स भी करवा रहे होते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो आगे फ्यूचर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं अच्छे से सर्व कर सकें। एक्सपोजर तो इज़ बहुत वेरी मस्ट है। इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। उसमें हमारे पास फील्ड विजिट्स भी होते हैं, गेस्ट स्पीकर सेशंस भी होते हैं, internship is also a mandatory part of the curriculum. Along with that, we keep on doing such sort of activities, community-based activities in which we provide awareness sessions, community sessions regarding healthcare. So that's a big plus.
and the अगर- kids enjoy that as well. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स लर्न करने के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होते हैं. Right. सो अगर हम रोड मैप की बात की जाए, जैसे कि हमारे पब्लिक हेल्थ के जो करिकुलम है उसमें कुछ कोर कोर्सेज होते हैं जो प्योरली हेल्थ डोमेन से रेलिवेंट है. वी आर टीचिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, इन्फेक्शियस डिजीजेस, सोशलिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज. उसकी अगर हम बात करें, एपिडेमियोलॉजी हमारे पास है, माइक्रोबायोलॉजी, भी मेंटल हेल्थ पे हमारी बात हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, क्योंकि काउंसिल करना है स्टूडेंट्स ने ना, कम्युनिटी डिफरेंट डोमेन्स हैं. पब्लिक हेल्थ में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं आगे जाके स्टूडेंट्स फर्दर स्पेशलाइजेशन It's किसी एक में actually कर रहे a होते हैं. very versatile degree. एग्जैक्टली. तो Extremely बीएस में versatile क्या degree. है? बीएस में हम किस तरह के रोड मैप किस तरह से डिजाइन हुआ है? Roadmap is a kind of national and internationally aligned roadmap है हमारा, और proper meetings के through हमने इसको align किया है, so that we can provide the quality education which is accredited from the international body. उसके अलावा यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स की अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो सब्जेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो हेल्थ केयर के जहाँ पे हमारे फैकल्टी भी जो है इट्स फ्रॉम जो विजिटिंग फैकल्टी होती है, दैट इज़ लाइक फॉर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स, because we have been teaching the basic core medical subjects like infectious diseases, communicable, non-communicable, and then we have some subjects related to stats and research, that is research methodology and epidemiology, biostats, as well as then the nutritional subjects are also there, reproductive health is also there, mental health is also there, primary health care is there. We have also linked subjects linked to health as well as the sociology or the social, which covers the social aspect. Pediatric health is there, dentistry is there. So it's a very versatile program. After doing your bachelor's, accordingly you can plan your master's in your field of interest, and the perfect thing would be if you can identify your interests or your strengths during your bachelor's, so that you can actually specialize in your strengths as soon as you have been graduated, because it's a very versatile mix kind of a field. You love doing the field work, you can be in the research side, you can be a purely an academic professional, so it's a big plus. Like, it's not like the rest of the medical fields which are boring or like extremely dry. It's very like field related, practical, so it's a big plus. ओके. स्टूडेंट्स को, जैसे आपने बात की लाइवली, तो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी Yeah. फील्ड को लाइवली बनाने में, इंटरेक्टिव उसको जो है वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उसमें डेवलप रहे टिल द एंड ऑफ द लेक्चर. ईच एंड एवरी लेक्चर वी हैव टू मेक इट वेरी क्रिएटिव. सो बहरिया यूनिवर्सिटी में डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस भी हो रहे होते हैं. वो तमाम स्टूडेंट्स जो वीक हैं या जिनको कोप अप करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कोई ऐसे सेशंस पब्लिक हेल्थ डोमेन में रन हो रहे हैं, और किस तरह से हम स्टूडेंट्स को काउंसिल कर रहे होते हैं पब्लिक हेल्थ? बहुत हमारे पास करियर काउंसलिंग सेशंस हैं properly during the term, during the semester. We used to plan that accordingly if needed, and requirement based भी है, plus जो आपके generalized हैं सबके लिए, they are also there. So इसके अलावा हमारे पास, in order to make the program effective, we have been doing different internships, offering different internships. As I mentioned, it's a big plus. As Dr. Anam mentioned, we have the research project, which is a mandatory necessary for the degree to be completed. So students actually start doing this in the semester 7 and they're supposed to complete it by semester 8. So they have that research part covered as well. Then a big plus is the student exchange program. So students actually enjoy that as well. When they have been visiting different countries in their particular domains, they cover their one semester over there. So that's a big plus. बहरिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है क्या? क्योंकि बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर नहीं हैं, तो जो हम मौका प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, उससे अब अलाइंड है. काफ़ी सारे वही कोर्सेज जो इंटरनेशनली बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे होते हैं हमारे करिकुलम का वो हिस्सा हैं. तो वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी ऑब्वियसली हमारे, तो वो किस तरह से है, आप स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे उस हवाले से? स्टूडेंट्स के लिए देखें, हमारे पास दो तरह की, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. दो तरह के स्कॉलरशिप्स हम ऑफ़र करते हैं. एक तो होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. वो स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियली जो कि वीक हैं, उनके लिए वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं. दूसरा ये है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स. मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के अंदर ही हम जो है ये एक्सचेंज प्रोग्राम रन करते हैं.
वो बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों अपने एकेडमिक कैरियर में विद इन लाइक उसमें 4 से 5 सेमेस्टर्स उनके हो चुके हों, उसके बाद जो है दे आर एलिजिबल फॉर द एक्सचेंज प्रोग्राम, क्योंकि 4 से 5 सेमेस्टर के अंदर ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी कितनी अच्छी जीपीए बनी है, ठीक है, उन्होंने अपने कितने कैरियर में, अपने एजुकेशनल कैरियर में किस तरह उन्होंने उसमें अचीवमेंट करी है। वो बच्चे जो मेरिट पे अच्छे आते हैं उनको यूनिवर्सिटी जो है ऑफ़र करता है एक्सचेंज प्रोग्राम, एक सेमेस्टर में के लिए एटलीस्ट वो एक सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ्स के लिए वो डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से वो कोर्सेज लेके पढ़ के आते हैं और फिर इस तरह जो है एक तरह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि एक अगेन बहरिया का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि ये बहरिया एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो जिसके बच्चे इस तरह यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं। ओके, सो कोई भी बच्चा जब बीएच कर चुका होता है पब्लिक हेल्थ का, या तो वो मास्टर्स में जा रहा होता है या फिर वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर रहा होता है हेल्थ केयर में। पब्लिक हेल्थ में तो ऑब्वियसली ऑप्शंस बहुत सारी राहें हमवार कर देता है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, तो कौन से ऐसे ऑप्शंस स्टूडेंट्स अपने माइंड में, ऑब्वियसली वक्त के साथ उन्हें खुद अंदाज़ा हो जाता है बिकॉज हम काउंसिल कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम समराइज व्यू देखें तो कौन सी ऐसी डोमेन्स हम ज्वाइन कर सकते बीइंग अ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट। मैं अगर अपने आप को पब्लिक हेल्थ बच्चे के तौर पर देखूँ तो किस तरह से उसके नुक्ते नज़र से सोचते हुए कि उस बच्चे को अगर हम गाइड करें तो कौन कौन से आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि वो अपना माइंड उस तरह से अलाइन कर सके। अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी के बहुत सारे MOUs साइन हुए हुए हैं बहुत से NGOs के साथ, इंटरनेशनल NGOs के साथ भी और नेशनल NGOs के साथ भी। तो उसमें यही होता है कि हम वो विजिट्स भी कराते हैं ड्यूरिंग देयर बैचलर्स एजुकेशनल लाइफ, उसमें उसके बाद फिर वही NGOs जो है उनको फर्दर जो है जॉब्स ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा ये है कि वो रिसर्च में जा सकते हैं, रिसर्च इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट फील्ड, अब तो दौर ही रिसर्च का आ गया है, बहुत सारी ऐसी जगहें NGOs में भी इवन के रिसर्चेस हो रही हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, और जो एजुकेशनल अगर उनको आगे परस्यू करनी है तो दे कैन गो फॉर द मास्टर्स, दे कैन गो फॉर द PhD। इसके अलावा ये कि वो एज एन एजुकेशनलिस्ट भी बन सकते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं, पब्लिक हेल्थ एजुकेशनलिस्ट होते हैं, ये वाली एक फील्ड भी आ जाती है। तो देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे हमारे they can join national and international organizations. Then the research market is a huge market. There they can join as research analyst, research associate, senior, junior research associate, and if they can take that path, so they can even lead to the director or the other executive levels. And then we have like if they want to pursue the academic, they want to pursue the career in the academic as an academic professional like we are, so they can do that as well. Then there are MBAs, like people also opt for MBAs after bachelor's in public health, so they can go for MBA in healthcare management, so that they can go for like in the corporate sector they can make their career. Then they can work as the policy makers as well in the government or the private sector, so they can have multiple roles. जब पब्लिक हेल्थ का करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स मौजूद हैं, बिजनेस की स्किल्स हैं, वो आप जहाँ पे भी हेल्थ से रेलिवेंट कोई भी डोमेन आ रही है, वेदर इट्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि पॉलिसी से रेलिवेंट भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। अदर देन दैट अगर हम बात करें मेडिकल अफेयर्स की, उसमें भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी स्टूडेंट्स पब्लिक हेल्थ के होते हैं। डिपेंड कि फर्दर आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन को टारगेट कर रहे हो और फर्दर आपके प्लान्स यानी जो आपके विजन मिशन वो किस तरह से आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर जर्नी किस तरह से अलाइन है। तो ऑल एरियाज आर ओपन, वेदर इट्स ऑफ कोई चाहे वो इंडस्ट्री हो, एकेडेमिया हो, हॉस्पिटल्स हो, NGOs हो, देयर आर न्यूमरस, इट ऑल डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटीज़ कि आपकी सलाहियतें कितनी और ख़ुद को आपने कितना पहचाना है कि आप कहाँ बेस्ट फिट हो रहे हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग मैथडोलॉजीज़ पे। जैसे यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉलो हो रही होती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी एक हिस्सा होती है। तो टीचिंग मैथडोलॉजीज़ हमारा जो व्हेन वी आर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स तो हम डिफरेंट वेज, डिफरेंट प्रैक्टिकल भी हम सिखा रहे होते हैं। कोई भी, जैसे मैंने बात की अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो बच्चे किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वो मैनेज करेंगे। दे कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज़, वी हैव क्विजेज, असाइनमेंट्स, वी हैव ओवरऑल एक प्लान्ड है। यहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी की सबसे बेटर बात कि हर चीज़ बहुत डिसिप्लिन्ड, प्लान और रिटर्न में हर चीज़ प्रॉपर मौजूद है, SOPs प्रॉपर क्रिएटेड है यहाँ पर। सो क्या टीचिंग मैथडोलॉजीज़ हम जिनसे के ज़रिए स्टूडेंट्स को इल्म से आशना कर रहे होते हैं?
अच्छा, हमारे यहाँ हमारी बहरिया यूनिवर्सिटी की कोशिश यही रही है कि स्टूडेंट्स को जो है एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी अलाइन करके दी जाए। तो हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं उसमें हम लोग शुरू की जो कोर्सेज़ होते हैं, ऑब्वियसली बात है कि वो कोर कोर्सेज़ होते हैं, उसमें तो हम लोग सब्जेक्टिव ही रहते हैं ज़्यादातर। और फिर बाद के जो कोर्सेज़ हैं, बाद के जो सेमेस्टर्स हैं, उसमें हम प्रैक्टिकली उनको जो है इंगेज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। और किसी किसी जगहों पे हम उनको एनजीओज़ के साथ भी अलाइन करते हैं, उनके छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रन करवाते हैं। और उनको टारगेट दिया जाता है असाइनमेंट्स के तौर पे, क्विज़ेस के तौर पे, कि वो जो है छोटे छोटे टारगेटेड पॉपुलेशन को जो है वो अपनी एजुकेशन से जो है वो उसको इम्प्रूव करें उनकी हेल्थ को। क्योंकि हेल्थ देखें, वही बात है कि जैसे सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही है कि हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर तो देखें है एक तो महंगा और अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है हमारे पास। तो क्यों ना हम जो है वो एहतियात की तरफ जाएं। और यही कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमागों में भी होता है कि हमारी तरफ से कि भाई वो एहतियात पे ज़्यादा फोकस करें, लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को डिफरेंट तरीके से अवेयरनेस दें। अब जो है ज़ाहिर डिजिटल हेल्थ के थ्रू भी दे सकते हैं आप, प्रिंट मीडिया के थ्रू, मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एनी मीडिया यू कैन यूज़ एंड यू हैव टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स। ओके, यहाँ पे मैं एक बात एग्जामिनेशन। ऐड करना चाहूँगी कि पब्लिक हेल्थ को समझने के लिए पब्लिक एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि पब्लिक हेल्थ जो है ना वो एज अ नॉर्मल हेल्थ केयर प्रोवाइडर यू आर नॉट डीलिंग विद द पेशेंट. It's the name is not the patient's health, it's public health. You are dealing with the public, you are dealing with the health issues of the community, of the public. हमें पेशेंट को पेशेंट बनने से पहले ही पहचानना होता है और उसको स्टेज पे जाने से रोकना होता है, ठीक है। सो उसमें हम एट रिस्क पॉपुलेशन को देखते हैं और उसके लिए सारी स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और फिर हम पब्लिक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी डिज़ाइन की जाती हैं और वो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। देन ऑब्वियसली देयर कम्स द पेशेंट, लेकिन उनके लिए भी हमारा जो टारगेट होता है और जो हमारी कोशिश होती है वो ये होती है कि वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे ही हम उसको मैनेज कर लें, बिकॉज एज सून एज इट गोज़ टू दी secondary or tertiary level it gets very complicated and the treatment is certainly not budget friendly. एग्जैक्टली, So that is it. सो प्रोएक्टिव एक अप्रोच होती है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव अप्रोच होती है। जो रिएक्टिव हम बाद में करें, एक है जो हम पहले से ही इनिशियल लेवल पे करें। यू आर वेरी राइट कि हम पॉपुलेशन को, ज़्यादा पॉपुलेशन को, यानी किसी भी कंट्री की उस पर आप सर्व करें, वेदर इट्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स मल्टीपल उस पर रन होते रहते हैं। जॉब्स भी डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स को दे कैन सिक्योर द जॉब। अगर हम अपने उसकी करिकुलम की बात भी करें तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने से पहले एंड सेमेस्टर्स में ही दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स एज वेल। इन द एंड ऑफ द सेमेस्टर दे गॉट वेरी गुड जॉब्स। सो अगर हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें बहरिया यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ डोमेन में, तो कैसे हम किसी स्टूडेंट को असेस कर रहे होते हैं कि उसका क्राइटेरिया या वो कहाँ फॉल कर रहा है, या क्या एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा यहाँ पर मौजूद है? अच्छा, यहाँ पर मिड टर्म्स होते हैं और फाइनल्स होते हैं, इसके साथ साथ हम जो है क्विज़ेस लेते हैं बच्चों के। कुछ सरप्राइज क्विज़ेस भी होते हैं ताकि एवेलुएट कर सकें बच्चों की कितनी ग्रोथ हो रही है एजुकेशनल वाइज। इसके अलावा असाइनमेंट्स होते हैं, दैट आर द मैंडेटरी थिंग्स, ठीक है। वो जो है स्टूडेंट्स को लेनी होती है। जैसे मैंने बताया था कि अटेंडेंस इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, 75% अटेंडेंस हो। और इसके अलावा ये क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और मिड टर्म्स के मार्क्स, फाइनल्स के मार्क्स, ये सारे मिला के जो है दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स के हम इस तरह स्टूडेंट्स को एवेलुएट करते हैं और उनके बेसिस पे ही हम उनको रिजल्ट बना के देते हैं। ओके, जैसा कि आपने मेंशन किया कि हम बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर फ़ीस स्ट्रक्चर बहरिया यूनिवर्सिटी का पब्लिक हेल्थ के लिए क्या है? और इसके अलावा अगर हम कोई भी सेकेंड ईयर के बाद कोई बच्चा इनरोल होना चाह रहा है तो वो उसका होगा इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इकोनॉमिक बर्डन इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। कभी हम देखते हैं तो वो इकोनॉमिक इज़ वन ऑफ द, कहीं भी हम ज्वाइन करते हैं तो हम मल्टीपल सिनेरियोज देख रहे होते हैं, उसमें से एक इकोनॉमिक होती है। तो क्या फ़ी रेशियो और क्या स्कॉलरशिप्स, कितने परसेंटेज हम स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं, किस बेसिस पे रेलिवेंट टू द फ़ी स्ट्रक्चर? फ़ी स्ट्रक्चर बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा नहीं है और स्टूडेंट्स कैन ईज़िली अफोर्ड इट। इसके अलावा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं
जो बच्चे मेरिट पे अच्छे आते हैं वो यूनिवर्सिटी उनको ऑफ़र करता है कुछ सेमेस्टर की फ़ीस उनकी वेव हो जाती है और फिर वो उनके लिए आसानी हो जाती है। इसके अलावा ये कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी बहरिया जो है वो अकोमोडेट करता है। और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो कि यहाँ पर बहरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ऐसे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती और उनको जो है उनके कैरियर में वो आगे परस्यू कर सकते हैं अपना एजुकेशन कैरियर। स्कॉलरशिप्स के अलावा यहाँ पर ये है कि बच्चे जो हैं उनका अपना इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, मैटर करता है। दे कैन वाइल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन फिर उनको जॉब्स ऑफर हो जाती हैं तो दे कैन कम बैक विद दैट। ओके, फैकल्टी इज़ वेरी डेवलप्ड फैकल्टी, डिफरेंट इंटर्नशिप्स के थ्रू स्टूडेंट्स को स्टार्ट से ही ना इंडस्ट्रीज़ के साथ एक्सपोजर हमारा Link स्टार्ट कर से देते स्टूडेंट्स हैं। का स्टार्ट से ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा डिफरेंट सेमिनार्स, काउंसलिंग सेशंस रेलेवेंट टू मल्टीपल एरियाज़ वो हो रहे होते हैं। आपका कोई मैसेज फॉर अपकमिंग पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, तो इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स या आपका कोई मैसेज है जो आप देना चाहेंगे एज बीइंग अ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर? जी ज़रूर, मैं यही कहूँगी कि देखें स्टूडेंट्स जो है बहुत ये जो इंटर के बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं दे आर यूजुअली बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनके पेरेंट्स कंफ्यूज ना हों और अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है मेडिकल के फील्ड से ही रिलेटेड रहें तो दे कैन इनरोल देयर किड्स इन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स उनको मिलेंगे जो उनको बहुत सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट देयर एजुकेशनल कैरियर और हम लोग उनको इतना अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं कि दे कैन बी वन ऑफ द दे कैन वर्क मोर देन द डॉक्टर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर नम्रा, आपका कोई मैसेज है पब्लिक हेल्थ? मेरा यही मैसेज है कि बच्चे जिस तरह की अवेयरनेस सेशन हम दे रहे हैं ये सेशन के थ्रू और अपनी पब्लिक हेल्थ जो गाइडेंस आपके पास मौजूद है उसका पूरा एक अवेयरनेस के साथ जो है ना प्रोग्राम को ज्वाइन करें एंड हैव अ क्लोजर लुक एट व्हाट वी आर ऑफरिंग and how it is distinctive from the rest of the universities in the town, and plus I think it's very good step for the parents as well as for the students, because as Anna mentioned that that's quite economical as compared to the rest of the healthcare degrees. They are very expensive, time taken, and a lot of hard work is required. In the public healthcare, you can actually communicate with the public, with the community in a very better way through direct or indirect means depending on you, and you can actually bring the healthcare at a better level. ओके, ऑल राइट। जैसे कि दुनिया के जो सब हेल्थ केयर के प्लेटफॉर्म्स हैं, यू हैव गिवन अ वेरी राइट मैसेज कि अपनी दिल की आवाज़ सुने, क्योंकि इसमें आपको वो फील्ड कभी भी कैरियर का इंतखाब करते हुए हमें उस फील्ड का इंतखाब करना चाहिए जो हम चाहते हैं, द वे जिसके लिए हम बने, क्योंकि पब्लिक हेल्थ में हमें कम्युनिटी को सर्व करने का, इंसानियत की खिदमत का मौका मिल रहा है। वी कैन सर्व सो मैनी पीपल एट अ टाइम। तो हम जो है वो इंसानों को सर्व करने वाला एलिमेंट हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह से यहाँ पे हमें मौका मिल रहा है। हेल्थ इंसानों से जुड़े हुए मेजर पॉपुलेशन को हम कर रहे हैं, हम पहले से ही प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू हम उन्हें डिजीज़ से बचा सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को। आई होप दिस सेशन विल बी वेरी मच इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए सेक्शन इफेक्टिव रहा होगा। इफ़ यू नो मोर अबाउट पब्लिक हेल्थ डोमेन, यू कैन विजिट द वेबसाइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल इंसाइट्स, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड watching us. Take care of yourself and your surroundings. Fi amanillah. You are watching BUTV Karachi.